Hello students, this is Prakash sir. Welcome to Unique Educator Academy channel. Students, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का बाकी के रिमेनिंग सम्स करने वाले हैं. तो we will continue this practice set 3.4 sum number 4 which I have already written on the board. So what does the 4 number say? Question number 4 says in figure segment RS is the diameter. Now you can see this is the diameter. RS is the diameter given, and with the center O, we know that O is the center of the circle. Point T lies in the exterior of the circle. So now see there is a point T over here which is lying on the exterior. Exterior means circle के बाहर OT है. आप देख सकते हैं in this figure. And we have to prove that angle RTS is an acute angle. This angle RTS is an acute angle हमें prove करना है. So for that I need to draw some construction here. So construction part here देखो तो join, I can say here construction. So I can say join RT, join TS, join RT and TS. तो हम join करेंगे students. तो RT आप देख सकते हैं. So this is join RT and TS. I have already joined, and let this RT cuts this circle at M point. This is the M point we are going to take. Okay. So I will write that. I will write here. Let segment RT. ये RT जो segment है M पे circle को M पे intersect कर रहा है. Let segment RT intersect the circle at point M. M पे intersect हो रहा है, तो I have to join MS also. Join MS. तो इस तरह से join draw MS. Okay, draw MS. So now students we can see here RS is the diameter. RS जो है वो diameter है. अगर RS diameter है students, तो आपका ये RMS ये जो arc है RMS is an semi circle, और semi circle में अगर कोई angle inscribe होगा तो that angle will be 90 degree. तो for example ये आपका circle है, ये आपका diameter है. तो diameter this is a semi circle, और सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल आप बना रहे हो तो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री आपका होगा. इट मींस दैट एंगल RMS इज 90 डिग्री. सो आई विल राइट दैट एंगल RMS is inscribed in the arc RMS. तो ये आपका RMS ये आर्क है. ये आर्क के अंदर ये एंगल RMS आपका इंस्क्राइब्ड है. तो एंगल RMS इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क RMS. Therefore angle RMS is 90 degree. Therefore angle RMS you can write it as 90 degree. Here you can say angle inscribed in a semicircle. Angle inscribed in a semicircle. तो ये जो आपका एंगल RMS है ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है. Therefore angle RMS is equal to 90 डिग्री. ओके, RMS आपका 90 डिग्री है. सिमिलरली हम ले सकते हैं SMT is also 90 डिग्री. Angle SMT is equal to 90 degree. Now in triangle SMT, I will take in triangle SMT, angle T plus angle N plus angle S is equal to 180 degree. मतलब ये ट्रायंगल आप ले रहे हैं यहाँ पर, angle M, angle T and angle S. This is 90 degree. This angle and this angle, all three angles, angle M, angle T, angle S is equal to 180 degree. How? Sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. So I will write here
sum of the measure of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, so angle T plus angle M plus angle S is equal to 180 degree. Angle T plus angle M plus angle S is equal to 180 degree. In this, angle M is 90 degree, so angle T plus 90 degree plus angle S is equal to 180 degree. So now angle T plus angle S, angle T plus angle S is equal to 180 degree minus plus 90 होगा कि क्या होने वाला है minus 90 होगा. So therefore angle T plus angle S is equal to 180 minus 90, it is 90 degree. 180 minus 90 is 90 degree. So angle T, what is angle T? Angle T is MTS. Angle T is 1TS. मैं यहाँ पर लिखता हूँ. Angle T is angle T plus angle S is equal to 90 degree. What is angle T? Angle T is MTS. That means MTS plus angle S. Angle S is MST. MST, and that is equal to 90 degree. That is equal to 90 degree. So I got angle T plus angle S as equal to 90 degree. इसका मतलब ये दोनों एंगल ऐड करके, ये दोनों एंगल T और एंगल S ऐड करके 90 डिग्री है. तो इसका मतलब कि ये 45 होगा, या फिर ये आपका 89 होगा और ये आपका 1 डिग्री होगा, बराबर. तो मैक्सिमम ये 89 हो सकता है और ये 1 डिग्री. 89 प्लस 1 इज 90 डिग्री. इट मीन्स दैट एंगल MTS जो है लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 89 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 90 होगा. तो ये 89 मीन्स दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. 89 है तो लेस देन 90 डिग्री होगा. ये एंगल जीरो तो नहीं हो सकता. तो इन दिस वे वी कैन से दैट एंगल MTS is less than 90 degree. Angle MTS is less than 90 degree. And what is angle MTS? MTS is nothing but angle RTS. So therefore angle RTS is less than 90 degree. So this is by definition. Okay, this is by definition, and that is what I have to prove. Angle RTS is an acute angle. If angle RTS is less than 90 degree, it means that angle RTS is an acute angle. Okay students, I hope so कि आपको समझ में आया. आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं और फिर बाद में मैंने एंगल SMT लिया है. एंगल SMT is a right angle triangle. So I have added all the three angles and I have taken it to some 180 degree. So I hope so you have understood. Let us continue to the next one. Let us continue to question number 6. Question number 6 is, in the figure altitude YZ and XT. We can see altitude YZ is drawn on XW altitude, and altitude XT is drawn on segment WY. Okay, so these are the altitudes of triangle WXY, and they intersect at point P. These are the altitudes which intersect at point P. And what we have to prove? We have to prove that first quadrilateral WZPT is cyclic. Quadrilateral WZPT is cyclic. And the second is points X, Z, T and Y. Points X, Z, T and Y are concyclic. So students, last lecture में हमने लास्ट सम में देखा था कि हाउ द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसके ऑपोजिट एंगल्स अगर ऐड करके 180 डिग्री आ गया, देन वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस व्हाट कि चारों भी पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल पे होते हैं. ओके, तो सर्कल पे अगर चारों पॉइंट्स अगर होंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल्स हम लोग ऐड करके 180 डिग्री ले सकते हैं. बट हियर जो है हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऐड करके चेक करेंगे कि वो 180 डिग्री आ रहा है या नहीं. अगर आ रहा है देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट जो प्रूव करना है कॉनसाइक्लिक. तो व्हाट इज कॉनसाइक्लिक? सपोज ये आपका ए बी जो है, दिस इज सर्कल सपोज. ओके, दिस इज सर्कल and these are the points A, B on the circle. So suppose मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये 60 डिग्री है,
और एक मैंने यहाँ पर एंगल बनाया, ये भी 60 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ए बी जो है, कॉर्ड ए बी जो है, ये ऑन द सेम साइड पॉइंट डी एंड सी, सेम साइड में पॉइंट डी एंड सी एंगल बनाया है, दैट इज एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी। ये दोनों भी एंगल जो है वो 60 डिग्री है एंड इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी के ऊपर है। तो ये अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी वी कैन से आर कॉन्साइक्लिक, मतलब ए बी के ऊपर दो पॉइंट है डी एंड सी, और एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी डी आर इक्वल, देन वी कैन से दैट पॉइंट्स ए डी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। तो ये हमें ऐसे बताना है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था। नाउ आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन पार्ट इज हियर, you can say that yz is perpendicular to xw। तो ये 90 डिग्री दिया तो इस तरफ का भी 90 डिग्री होगा, ओके। एंड xt इज परपेंडिकुलर टू wy, तो xt y इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ओके। तो ये दो जो एंगल जो है ये 90 डिग्री मैंने लिया है ऑन द अदर साइड। तो मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ ये, क्योंकि मैंने लिया है, ओके। So now if I draw this figure here, you can see that यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये जो है ये ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल Z एंड एंगल P आर ऑपोजिट एंगल्स एंड बोथ आर 90 डिग्री। सो आई राइट दैट फर्स्ट एंगल WZP is equal to angle WTP and both are 90 degree, it is given, okay, it is given। तो क्योंकि इन्होंने YZ परपेंडिकुलर कहा, YZ is perpendicular, so therefore angle WZY आपका 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से XT is perpendicular, therefore angle WTP is also 90 degree, so both are 90 degree given over here। So what we can write here, and we these are the opposite angles of this quadrilateral WZPT। तो लेट मी चेक, जो दोनों एंगल को ऐड करके मैं चेक करने वाला हूँ कि 180 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं दिस इज 90 दोनों ऐड करके 180 डिग्री आ जाएगा। तो लेट मी राइट हियर मेजर एंगल WZP प्लस मेजर एंगल WTP, WZP and WTP, if I add it, what is this? This is 90 degree and this angle is also 90 degree, and 190 plus 90 is 180 degree. It means that measure angle WZP plus measure angle WTP is 180 degree. So these are the opposite angles, but they are opposite angles of a quadrilateral. They are opposite angles of a quadrilateral and are supplementary supplementary भी है। Then we can say that quadrilateral WZPT is cyclic quadrilateral। Therefore quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral। So by how? This is by converse of cyclic quadrilateral theorem। This is by converse of cyclic quadrilateral theorem, okay। This is by converse of cyclic quadrilateral theorem। So our second point is point x z t y are concyclic। x z t y अगर हमें concyclic prove करना है तो you can see this figure here। I will draw a separate figure over here। So this is x y and this is 90 degree and this is also a 90 degree, okay। So angle xzy, I can write here angle xzy is equal to angle xty, and both are equal to 90 degree। So this is also given, okay। What we can say,
angle XZY is 90 degree, and angle XTY is also 90 degree. Therefore you can see in the figure both the angles are 90 degree. Therefore both the points X and Y, now points I can write points X and Y on the line XY. These are the points X and Y on the line XY. Substance equal angle, because both are 90 degree, so I can write here substance equal angles at two distinct points. These are the two distinct points Z and T, at two distinct points Z and T. Okay, and they are on the same side of the line XY and are on the same side of seg XY. They are on the same side of seg XY. Therefore we can say that quadrilateral points X, Z, T, Y, X, Z, T, Y are concyclic. Okay, so reason is the same over here given, that points 2 points Z and T is subtended by the segment XY on the same side of the line XY. Therefore points X, Z, T, Y are concyclic. तो concyclic का मीनिंग आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? ये XY जो है उसके पॉइंट्स X और Y जो है ये सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल XZY एंड एंगल XTY, और दोनों भी एंगल अगर 90 डिग्री है देन वी से दैट, और X और Z और T जो है XY के सेम साइड में, या तो ऊपर है या तो नीचे होने चाहिए. ओके, सो देन वी से दैट पॉइंट्स X, Z, T एंड Y आर कॉन्साइक्लिक. ओके, आपका सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो मैंने प्रूव कर दिया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ये फिगर दिया है स्टूडेंट्स. इन द फिगर मेजर ऑफ आर्क NS इज 125. तो दिस आर्क NS इज 125. अगर ये 125 आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये 125 है डिग्री. तो मेजर ऑफ आर्क NS इज 125 डिग्री. तो आई राइट इट विथ रेड पेन. तो दिस आर्क इज 125 डिग्री. ओके, and measure of arc EF is 37. So this arc is 37 degree. Okay, so find measure angle NMS. measure angle NMS, ये एंगल आपको फाइंड करना है. This angle you have to find angle NMS. So now in पेज नंबर 72 स्टूडेंट्स, आप अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 ओपन करेंगे तो वहाँ पर रिमेंबर दिस एक बॉक्स दिया है. इसमें ये फॉर्मूला क्लियरली दिया गया है. वो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपका एंगल NMS का वर्टेक्स जो है, एंगल M जो है वो सर्कल के बाहर बन रहा है, और अगर उसका एक आर्म MN और आर्म MS जो है वो सर्कल को अगर कट कर रहा है एंड इट इंटरसेप्ट्स टू आर्क्स दैट इज EF एंड NS. और इंटरसेप्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि अगर ये एंगल है तो उसके सामने वाला आर्क को हम कहते हैं इंटरसेप्ट आर्क. दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट आर्क. ओके, क्योंकि ये एंगल जो है NMS, एंगल NMS जो है ये आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है. उसी तरह से एंगल NMS जो है ये आर्क को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क EF को. तो दीज आर द इंटरसेप्टेड आर्क स्टूडेंट्स. ओके, तो इंटरसेप्टेड आर्क समझ में आया कि एंगल NMS के वजह से दो आर्क आ रहे हैं. एंगल के अंदर एक आर्क NS आ रहा है और एक आर्क EF आ रहा है. दोनों आर्क को हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे. सो इंटरसेप्टेड आर्क का जो एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क्स जो है ये दो आर्क है, और एंगल NMS जो है वो एंगल M बाहर है, तो उसका एक फॉर्मूला होगा. तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने वाले हैं. एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क. बड़ा वाला आर्क कौन सा है, इंटरसेप्टेड आर्क NS, मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF, मेजर ऑफ आर्क EF. ये आपका फॉर्मूला है. सो ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 पे क्लियरली दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं.
So this formula is already given. So I will write here angle NMS मुझे find करना है, and half of measure of arc NS. What is measure of arc NS? यहाँ पर दिया गया 125 degree. So I'll write here 125 degree minus measure of arc EF. What is measure of arc EF? EF is 37 degree. So this I have to subtract it. तो subtract करेंगे. So what I will get? I will get 88. I will get 88. So I will cancel this. Half into 88, I will cancel it, and I will get 44 degree. So what is angle NMS? Angle NMS is 44 degree students. So this is very easy. एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और पेज नंबर 72 पे टेक्स्ट बुक मैंने आपको बताया था, टॉप पे ये फॉर्मूला और ये डायग्राम बना के उन्होंने बताया. तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. तो फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने आई हैव फाइंड angle NMS, that is equal to 44 degree. So moving on to next sum, students. So let us move to the last sum of this practice set 3.4. What is question number 8? In the figure, chord AC and D intersect at point B. Chord AC and chord D intersect at point B. आप देख रहे हैं point B जो है, it is intersecting intersection of point chord AC and chord D. And it is inside the circle, and it is interior of the circle. So angle AB is 108. Angle ABE जो है वो 108 है. तो angle ABE is 108 degree given, and arc AE is given as 95. तो this arc is given as 95 degree. Okay, this arc is given as 95 degree. This arc is given as 95 degree. And find measure of arc DC. You have to find this arc. ये जो arc है ये आपको find करना है. Okay. तो one thing आपको remember करना है कि point B जो है वो center of the circle नहीं है. Point B जो है center of the circle नहीं है. तो मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर 72 पे ये डायग्राम के बेसिस पे इसका भी फॉर्मूला आपको क्लियरली मेंशन करके दिया गया है. दैट एंगल ABE, तो डायरेक्टली आपको दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है. उसके पहले हम लिखेंगे व्हाट एंगल इज गिवन. मेजर एंगल ABE इज इक्वल टू 108. आई विल राइट हियर सॉल्यूशन पार्ट. एंगल ABE इज इक्वल टू 108 डिग्री. एंगल AB इज 108 डिग्री. एंड मेजर ऑफ आर्क AE, मेजर ऑफ आर्क AE इज गिवन एज 95 डिग्री. So these are the things which is given to us. Okay. तो फॉर्मूला क्या दिया है कि एंगल ABE, दिस मेजर ऑफ एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क. अब देखिए एंगल ABE ले रहे तो उसके दो आर्क ऑपोजिट साइड बनते हैं. एक आर्क है AE, एक आर्क है DC. एक आर्क हो रहा है AE, दूसरा आर्क है DC. तो ये दो आर्क को हम ऐड करेंगे. क्या करेंगे? दोनों आर्क को हम ऐड करेंगे. तो एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क AE, हाफ ऑफ आर्क AE प्लस मेजर ऑफ आर्क, ये आर्क का ऑपोजिट आर्क जो है दैट इज DC. क्योंकि ये दो जो आर्क है कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE के वजह से ये दो आर्क बने हुए, और ये दो आर्क जो है ऑपोजिट है एग्जैक्टली. तो मुझे उसे ऐड करना है और उसका हाफ लेना है. देन आई विल गेट मेजर ऑफ एंगल ABE. सो नाउ आई विल राइट हियर हाफ, एंड मेजर एंगल ABE इज गिवन एज 108. आई विल राइट हियर 108 डिग्री. हाफ दिया गया है. मेजर ऑफ आर्क AE, मेजर ऑफ आर्क दिया गया है 95 डिग्री. 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. दैट आई हैव टू फाइंड. DC मुझे पता करना है, क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने DC. सो ये डिवाइड बाय 2 उधर के मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95. अब जो ब्रैकेट में वही बचेगा, तो ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं. 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. ओके. सो प्लस 95 यहाँ पर आएगा, माइनस 95 हो जाएगा. उसके पहले आई विल मल्टीप्लाई दिस. सो दिस विल बी 2 8 16. दिस इज 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. 95 प्लस में, तो प्लस 95 यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट विल बी सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स माइनस 95.
is equal to measure of arc DC, measure of arc DC, and 216 minus 95, if I subtract 200 minus 95, it will be 121. It will be 121 degree. That is equal to measure of arc DC. So इसको मैं उल्टा लिखूंगा, measure of arc DC is equal to 121. So this is a final answer, क्योंकि हमें चाहिए, मैंने आपको बताया था पेज नंबर 72 पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, उसके बेसिस पे हमने इसको सम सॉल्व किया है. तो प्लीज़ रेफर पेज नंबर 22 फॉर सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8. तो सपोज स्टूडेंट, अगर आपको एंगल EBC फाइंड करना होता, एंगल EBC फाइंड करना होता, उसका फॉर्मूला क्या होता, एंगल EBC के सामने वाला आर्क उसका ऑपोजिट आर्क. तो एंगल EC प्लस आर्क EC प्लस आर्क AD, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EC प्लस मेजर ऑफ आर्क EC का ऑपोजिट आर्क है AD. तो इस तरह से आप फॉर्मूला बनाते. अगर आपको एंगल EBC फाइंड करना है तो इट विल बी हाफ ऑफ EBC के सामने वाला आर्क है EC और उसका वर्टिकल ऑपोजिट आर्क है AD. तो उसको ऐड करना है, उसका हाफ लेना है. ओके, तो ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि हम कोई भी एंगल लेके उसका हाफ ऑफ सम ऑफ द ऑपोजिट आर्क्स को हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर. ओके, तो आई होप सो आपको एक्सरसाइज समझ में. डू विजिट माय चैनल यूनिक एडुकेटर एकेडमी फॉर अदर वीडियोस ऑल्सो. कुछ साइंस के वीडियोस और मैथ्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. सो नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय.